बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाइनस प्लांट की स्टेम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द स्टेम ऑफ द पाइनस प्लांट एंड टुडे वी विल discuss the internal structure of the pinus stem. The stem of pinus internally can be differentiated into different parts, which are the following. The first part is the epidermis. Number one part is epidermis, which is the outermost tissue in the stem, and it is single layered, and the outer wall of the epidermal cells, this is covered with the massive cuticle. Heavy cuticle is present on the outer walls of the epidermal cells. This is the epidermis layer, and this is the outermost heavy cuticle layer which is present in the epidermis cells. Then the next and the second part of the pinus stem is the cortex, which is present beneath the epidermis, means ये epidermis के नीचे present होती है, and cortex is made up of parenchyma cells, and the cells which are present below the epidermis of cortex, these are sclerified, means they become thick walled, इनकी wall thick हो जाती है, and then these thick walled cells are called as the hypodermis. This is known as hypodermis region. And then the cells which are present below the hypodermis of the cortex, these are thin walled, and these thin walled cells of the cortex, they contain resin canals and chloroplasts. In the stem of the pinus, endodermis and the pericycle, these are not conspicuous, means के ये prominent नहीं होती हैं, endodermis और pericycle region. This is the diagram showing the pinus stem, in which the outermost layer we studied is the epidermis, and epidermis cell is single layered, and then the outer walls of the epidermal layer or epidermal cell, these have heavy or thick cuticle layer, and then next to epidermis, second part of the pinus stem is the cortex, and these cortex cells below the epidermis become thick walled and they form the hypodermis, and then below the hypodermis these cells of the cortex are thin walled parenchyma cells, and these cortical cells, they contain resin canals, resin ducts and the chloroplasts in the parenchyma cells. And we can see here that there is no endodermis or pericycle layer in the cortical next region of the cortex. Then the next third main part of the pinus stem are the vascular tissues. Vascular bundles in the cortex, in the pinus stem, these have some characteristics. Number one, these are conjoined. Conjoined means that xylem and phloem, these are present in the same radius. Collateral. Collateral mean that phloem is present on one side of the xylem, and these vascular bundles are open, means vascular cambium is present in the vascular bundle, and then these vascular bundles
आर अरेंज्ड इन अ रिंग, यानी कि एक सर्कल में, दायरे की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। द जाइलम टिश्यू consists of two components, tracheids and xylem parenchyma, and phloem also comprises of two components, sieve tubes and phloem parenchyma cells. जाइलम टिश्यू में जो जाइलम सेल्स हैं वो यूनिसिरिएट जाइलम रेस फॉर्म करते हैं, और जाइलम और जो फ्लोएम है हर वेस्कुलर बंडल का, उसमें सेंटर में जो है वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये वेस्कुलर बंडल जो है वो ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है। एंड देन ईच वेस्कुलर बंडल, these are separated from each other by the presence of the parenchymatous cells जो कि medullary rays form करते हैं, and the center of the young stem, it is occupied by the pith cells which are made up of the parenchyma cells। अब हम आगे डायग्राम में देखते हैं वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द पाइनस स्टेम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी जो पीछे हमने पढ़ा था कि एपिडर्मस के नीचे जो है वो कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, जिसमें रेजिन कैनाल्स और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद इनर टू कॉर्टेक्स जो है इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, स्टीलर रीजन प्रेजेंट है, और वेस्कुलर टिश्यूज में अभी हमने पढ़ा कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कंजॉइंट होते हैं, फ्लोएम और जाइलम जो है वो एक ही रेडियस में जो है वो प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल में, और ये वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कोलेटरल होते हैं कि जाइलम जो है उसके एक ही साइड पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है ऑन द अपर साइड, और ओपन होता है वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम और जाइलम जो है उसके सेंटर में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है इसमें, और इसमें वेस्कुलर बंडल्स वी कैन सी हियर दैट दीज आर अरेंज्ड इन द रिंग, एक सर्कल में जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इसमें जो अपर ब्लू कलर का पार्ट जो है इट रिप्रेजेंट्स द फ्लोएम, एंड द लोअर पार्ट जिसमें आपको यूनिसिरिएट जाइलम की रोज जो है वर्टिकल रोज जो है वो नज़र आ रही हैं, दिस इज़ द जाइलम टिश्यू। ये जो पार्ट है ये जाइलम टिश्यू है विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स एंड द जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स, और जाइलम जो है वो रो जो है वर्टिकल रोज की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, सिंगल रो ऑफ जो है वो सेल्स जाइलम की जो प्रेजेंट होती है, और ये वेस्कुलर बंडल ओपन है, मींस के इसके बीच में फ्लोएम और जाइलम के सेंटर में ये कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। और हर वेस्कुलर बंडल जो है दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर वेस्कुलर बंडल बाय द प्रेजेंस ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स, और ये पेरेन्काइमा सेल जो हैं दो वेस्कुलर बंडल के बीच में दीज फॉर्म द मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और जो यंग स्टेम है उसके सेंटर में जो है वो पिथ्स प्रेजेंट होती है, एंड दिस पिथ इज मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स। द पाइनस स्टेम जो है इट शोज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो, और इसमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसके नतीजे में जो है वो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप होते हैं, और सेकेंडरी जाइलम जो है ये वेस्कुलर बंडल के इनर साइड पर प्रोड्यूस होता है, और इसमें पीछे भी हमने पढ़ा कि ट्रैकेट्स और पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो है वो जाइलम रेस जो है वो फॉर्म करते हैं, और इनर साइड पर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम टिश्यू ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, मीन के मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड देन द सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड बाय द वेस्कुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये जो है वो आउटर साइड की तरफ प्रोड्यूस होता है, और इसमें जो है वो पीछे भी हमने पढ़ा कि इसमें सेकेंडरी फ्लोएम में भी सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम जो है इसमें जो है वो फाइबर्स एंड सेक्लिडाइड्स दीज आर ऑल्सो फाउंड।
अब इसमें जो सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है, दिस इज़ मोर एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। तो ड्यू टू द एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, जो सीव एलिमेंट्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के, ये क्रश हो जाते हैं। सिवाय इसके जो वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके बिल्कुल करीब जो बनते हैं वो जो है वो क्रश नहीं होते हैं। एंड ड्यू टू द production of the secondary tissues by the vascular cambium, epidermis is replaced with the periderm that develops from the phellogen। और ये फेलोजन जो है ये कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर में प्रोड्यूस होती है। मीन के जब सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होता है तो उसके प्रोडक्शन की वजह से जो है वो एपिडर्मस पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो रप्चर हो जाती है और उसकी जगह पर फिर जो है वो पेरिडर्म प्रोड्यूस होती है। और ये पेरिडर्म जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू इन नेचर है और ये जो है वो कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर में जो फेलोजिन या कॉर्क कैम्बियम डेवलप होती है उससे पेरिडर्म प्रोड्यूस होती है। तो आइए अब हम डायग्राम्स देखते हैं जिसमें सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ हम देखेंगे और फिर उसके बाद कॉर्क कैम्बियम की जो है वो डेवलपमेंट। दिस इज़ द आउटर मोस्ट एपिडर्मस लेयर और ये जो है वो कॉर्टेक्स रीजन है। और इसमें अब हम देखते हैं नीचे कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो के नतीजे में टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं जो। दिस इज़ द vascular cambium which is present in between the phloem and the xylem। तो कैम्बियम जो है आउटर साइड पर ये जो है न्यू सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करती है और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो मतलब ऊपर है और उसके नीचे जो है वो फिर कैम्बियम जो न्यू फ्लोएम प्रोड्यूस करती है वो सेकेंडरी फ्लोएम है ऑन द आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, on the outer side of the cambium, while secondary xylem is produced on the lower side of the cambium, on the inner side of the stem। तो प्राइमरी xylem जो है ये प्रेजेंट है जो पहले प्रोड्यूस हुआ था कैम्बियम सेकेंडरी xylem प्रोड्यूस करने से पहले। जो xylem प्रेजेंट है प्राइमरी xylem और इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। नाउ कैम्बियम जो है वेस्कुलर कैम्बियम जो न्यू जाइलम प्रोड्यूस करती है विच इज़ नोन एज द सेकेंडरी जाइलम। तो ये सेकेंडरी जाइलम जो है ये जो है वो नीचे की तरफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। और सेकेंडरी जाइलम जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इट इज़ मोर मैसिव, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पर देख सकते हैं इसका वॉल्यूम देखें आप और इसकी सेकेंडरी जाइलम की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो इस सेकेंडरी जाइलम जो है इसके ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर जो सीव एलिमेंट्स हैं वो क्रश हो जाते हैं, सिवाय इसके कि जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम के करीब जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रश नहीं होते हैं। नाउ दीज आर द मेडुलरी रेस जो कि पहले वेस्कुलर बंडल जो है उसके बीच में प्रेजेंट थी, प्राइमरी मेडुलरी रेस कहलाती हैं। फिर जब सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी जो है वो रेस, मेडुलरी रेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं पेरेन्काइमल सेल्स की। तो दीज आर नोन एज द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो वेस्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से इनर साइड की तरफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है और आउटर साइड की तरफ जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी जाइलम जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और सेकेंडरी फ्लोएम की अमाउंट जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी जाइलम। अब हम यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो है सेकेंडरी ग्रोथ में जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होते हैं तो एपिडर्मस जो है इस पर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी टिश्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होते जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसमें
जो है वो यहाँ पर कॉर्टेक्स जो है वो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर फेलोजिन डेवलप होती है या कॉर्क कैम्बियम डेवलप होती है। एंड दिस कॉर्क कैम्बियम जो है इट प्रोड्यूसेस द कॉर्क टिश्यूज़ ऑन द आउटर साइड, और इससे जो है वो इसको इन टिश्यूज़ को हम फिर कहते हैं पेरिडर्म, जो कि प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और पेरिडर्म को जो है वो अल्टीमेटली जो है वो रिप्लेस करता है। तो यहाँ इस डायग्राम में भी हम सेकेंडरी टिश्यूज़ जो है वो उनको देख सकते हैं कि ये वेस्कुलर जो कैम्बियम है आउटर साइड की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस कर रही है, और नीचे की तरफ जो है वो सेकेंडरी जाइलम है प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें जो है वो आगे हम जो है वो देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये सीज़न में इसकी सीजनल एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, और इसमें एक सीज़न में जो है वो ज़्यादा जाइलम प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा लार्ज साइज़ का जो है वो जाइलम टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे सीज़न में जो है वो कम और जो है वो स्मॉल साइज़ के वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में भी जो है वो हम देख सकते हैं कि जो है इसमें दिस इज़ द फ्लोएम टिश्यू, दिस इज़ कैम्बियम, और ये फ्लोएम टिश्यू है, और इनर साइड की तरफ जो है वो जाइलम टिश्यू है। कॉर्टिकल रीजन जो है उसमें रेजन केनाल प्रेजेंट है, और इसमें जो है वो हम देख सकते हैं इधर कि जो है वो एपिडर्मस जो है इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द पेरिडर्म, और जो कॉर्क कैम्बियम फेलोजिन जो है वो उसकी एक्टिविटी से डेवलप होती है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है अभी हमने पढ़ा कि ये सीजनल एक्टिविटी शो करती है, और इसकी वजह से जो है एनुअल रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन एनुअल रिंग्स में जो है वो विंटर और स्प्रिंग वुड जो है वो प्रोमिनेंट होती है, नज़र आती है। स्प्रिंग फूड वो होती है जो स्प्रिंग सीजन में एक्टिविटी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जाइलम प्रोड्यूस करती है, जाइलम टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं, और इस सीज़न में जो है वो मोर फूड इज़ अवेलेबल, और ज़्यादा मैसिव जो है वो जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस होता है। और जबकि विंटर सीज़न में या ऑटम सीज़न जो है उसमें फूड कम अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से कम जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस होता है, और वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और डॉर्मेंट हो जाती है, जिसकी वजह से विंटर और ऑटम सीज़न जो है उसमें बहुत ही कम और स्मॉल साइज़ का वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सीजनल एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम जो है एक साल के अंदर यूजुअली जो है वो उसकी ग्रोथ को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और 1 ईयर के दौरान जो ग्रोथ होती है वो उसको ग्रोथ में जो वुड प्रोड्यूस होती है या जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस होता है उसको जो है वो एनुअल रिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम जो है इसके अंदर हम देखते हैं एनुअल रिंग्स। वेस्कुलर कैम्बियम है ये, और ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है इसमें सबसे पहले जो है वो इसकी एक्टिविटी जो है वो उस सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो जाइलम प्रेजेंट था ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो आउटर मोस्ट साइड पर जो है वो ये प्राइमरी फ्लोएम था, प्रेजेंट था, जो सेकेंडरी टिश्यूज़ के प्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो स्लोली जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ये कैम्बियम जो है दिस प्रोड्यूसेस द इट बिकम्स एक्टिव, और सेकेंडरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड और सेकेंडरी जाइलम ऑन द लोअर साइड। तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्राइमरी जाइलम जो है इसके बाद ये जो प्रेजेंट है प्राइमरी जाइलम, इसके बाद फिर जो है वो फर्स्ट ईयर जो है उसमें सीज़न के फर्स्ट पार्ट में जो है वो स्प्रिंग सीज़न में जो जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी जाइलम टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि लार्ज नंबर में होता है। उसके टिश्यूज़ जो हैं उसमें साइज़ भी उनका जो है वो लार्ज होता है ट्रैकेट्स का।
और लेट सीज़न में ऑटम या विंटर सीज़न जो है उसमें फूड कम अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ द वुड और जाइलम टिश्यू इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये जो एक ईयर के अंदर डिफरेंट सीज़न में 2 सीज़न में जो वुड या जाइलम प्रोड्यूस होता है, दिस फॉर्म्स एनुअल रिंग। दिस इज़ द फर्स्ट एनुअल रिंग जो जिसमें स्प्रिंग सीजन में जो जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद लेट सीजन में ऑटम या विंटर सीजन में जो जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस हुआ। तो ये टोटल जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट एनुअल रिंग। फिर इसके बाद कैम्बियम जो है वो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब सीजनल एक्टिविटी जो है क्योंकि विंटर ऑटम में जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जब स्प्रिंग सीजन आता है तो दोबारा इसकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अगेन जो है वो स्प्रिंग वुड प्रोड्यूस होती है, स्प्रिंग सीजन में जो जाइलम टिश्यू प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद फिर जब ऑटम या विंटर सीजन आता है तो उस वक्त जो वुड प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों के नतीजे में दोनों सीज़न में जो वुड या जाइलम प्रोड्यूस होता है ये अब जो है वो सेकेंड एनुअल रिंग फॉर्म करेगा। इसको हम कहेंगे सेकेंड एनुअल रिंग। पहले साल में जो एक्टिविटी से वुड प्रोड्यूस हुई, जाइलम प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट एनुअल रिंग। फिर दूसरे ईयर में जो वुड प्रोड्यूस हुई 2 सीजन के अंदर, दैट इज़ नोन एज द सेकेंड एनुअल रिंग। और ये सेकेंडरी जाइलम ही जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट ईयर में अब जो वेस्कुलर कैम्बियम जो है इस दोबारा जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करेगी तो उसके नतीजे में जो वुड या जाइलम प्रोड्यूस होगा वो थर्ड एनुअल रिंग फॉर्म करेगा। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो है वो कैम्बियम की सीजनल एक्टिविटी की वजह से एक साल के अंदर 2 सीज़न में जो डिफरेंट वुड प्रोड्यूस होती है या जाइलम प्रोड्यूस होता है उसको जो है वो हम एक ईयर के अंदर 2 सीज़न में जो डिफरेंट वुड प्रोड्यूस होती है उसको कंबाइनली जो है वो एनुअल रिंग कहा जाता है। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स हम इसके वुड की जो है वो एज को भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन सी द डिफरेंट एनुअल रिंग्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। जो है इसकी एपिडर्मिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉर्क टिश्यू। कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है। फिर कॉर्टेक्स जो है वो भी स्मॉल इन साइज रह जाती है। दिस इज़ द कैम्बियम और ये जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम और इसके आउटर साइड पर जो है ये फ्लोएम प्रेजेंट है। जो सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, प्राइमरी फ्लोएम जो है बिल्कुल क्रश हो जाता है। और उसके बाद ये नीचे जो हमें डिफरेंट लेयर्स आपको जो है वो नज़र आ रही हैं, ये रिंग्स जो नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट एनुअल रिंग के स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में जो वुड प्रोड्यूस हुई। फर्स्ट एनुअल रिंग, दिस इज़ द सेकेंड एनुअल रिंग स्प्रिंग सीजन में जो वुड प्रोड्यूस हुई और ऑटम में। एंड दिस इज़ द थर्ड एनुअल रिंग एंड दिस इज़ द फोर्थ एनुअल रिंग एंड दिस इज़ द फिफ्थ एनुअल रिंग्स। तो इस तरह से पाइनस जो वुड है, पाइनस का जो स्टेम है उसकी जो है वो एनुअल रिंग्स को काउंट करके क्रॉस सेक्शन जब हम काटते हैं उसके क्रॉस सेक्शन में हमें जो एनुअल रिंग्स जो नज़र आते हैं, बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स हम इसकी एज को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सीजनल एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। और इसी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से स्टेम जो है उसकी गिर्थ और उसकी विड्थ जो है उसमें इंक्रीज़ होता है, उसकी मोटाई में इजाफा होता है। और वेस्कुलर टिश्यूज़ जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो पेरिडर्म की भी जो है वो डेवलपमेंट होती है जो एपिडर्मिस को रिप्लेस करती है। तो इस तरह से आज हमने पाइनस स्टेम के अंदर जो है इसकी एनाटॉमी को पढ़ा है
कि जिसमें हमने ये देखा कि पाइनस स्टेम जो है इंटरनली इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. Number 1, the outermost part is the epidermis, which is protective in nature also, and the second part is the cortex region, जिसमें के रेजन केनाल्स और जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं. और ये दो पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. एपिडर्मिस के नीचे जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं कॉर्टेक्स के, वो थिक हो जाते हैं जो हाइपोडर्मस फॉर्म करते हैं, और हाइपोडर्मस के नीचे जो थिन वॉल्ड कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स के जो थिन वॉल्ड सेल होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट और रेजिन केनाल्स प्रेजेंट होती हैं. फिर थर्ड मेन टिश्यू जो है वो स्टीलर रीजन है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं. और वेस्कुलर बंडल्स हमने पढ़ा कि इसमें कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं और रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और फिर इसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं दे शो सेकेंडरी ग्रोथ. और एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर दिस द protective tissue periderm is also developed.